मैंने सोचा कि यही अच्छा रहेगा कि आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करें, क्योंकि उसमें थोड़ा क्षेत्रीय गाने का एक झलक आपको दिख पाएगी, वो मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगी। इसलिए 3 क्लिप मैंने सिलेक्ट की है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक मेरा अंग्रेजी में अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू है, पर वो उसके बारे में आई एम श्योर आप समझ पाएंगे, क्योंकि काफी पिक्चर और म्यूजिक उसमें है। म्यूजिक का और गानों का आंदोलन में एक स्थान क्या है, उसके बारे में वो इंटरव्यू बेस्टियन के साथ किया था, वो शेयर करूंगी। उसके बाद हिंदी में एक छोटा सा क्लिप शेयर करूंगी। एक बहुत सीनियर आदिवासी क्षेत्र में लीडर रहे हैं, अमित कार्यकर्ता रहे हैं। खुद आदिवासी नहीं है, पर बहुत बहुत सालों तक वो पूरा घुल मिल के उन्होंने मध्य प्रदेश के एक बहुत जाने माने संगठन खेडूत मजदूर चेतना संगठन में अमित भटनागर का एक्टिविस्ट रहे हैं। उनका कल्चरल समझ ऑफ आदिवासी समाज और गाने का एक प्रभाव क्या है, उस पर एक छोटा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो मैंने रिकॉर्डिंग उनका बड़ा लंबा इंटरव्यू में से शेयर किया है, वो हिंदी में है, तो आपको आसानी होगी। जो हिंदी नहीं जानते हैं उसका सबटाइटल्स अंग्रेजी में है। और लास्ट एक इंटरव्यू, आई एम श्योर आप सब यंग है यहाँ, तो इंडियन ओशन को जानते हैं, राहुल राम को जानते हैं। वो काफी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं और आंदोलन के म्यूजिक के साथ भी उनका जुड़ाव रहा है, तो उनका एक आंदोलन के गाने के बारे में उनकी क्या समझ है, वो भी मैं उनके इंटरव्यू में से शेयर करूंगी। मुझे लगा कि ये माध्यम इंटरनेट का अच्छा है कि ना सिर्फ मैं ही बोलूं, पर आज हम अलग अलग लोग जो पूरे देश में फैले हुए हैं, जो किसी न किसी तरह से ये मुद्दे पे काम कर रहे हैं, उनकी विविध आवाजों के साथ हम गाने और आंदोलनों के साथ का जुड़ाव और उसका प्रभाव क्या है, हम अलग अलग आवाजों से समझे, जाने, उनके अभिप्राय जाने। हम शायद उनसे सहमत हो ना हो, पर हम तक वो आवाजें पहुंच सकी, इसलिए भी मैं ये 3 इंटरव्यू शेयर करूंगी। सो इट इज बेसिकली एन इंटरव्यू ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक इन मूवमेंट, स्ट्रगल में म्यूजिक का क्या रोल है। Kodaikanal won't step down till you make amends now. This is the story of Kodai's frustration, known to us as the princess of hill stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination. नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है, नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है। चलो उठो रोकना विनाश है, चलो उठो रोकना विनाश है। विकास के नाम पर बांध का ये खेल है, विकास के The Adivasi songs, that local songs that got generated became much more popular. These were songs that were sung in programs, but when we really had to mobilize the local tunes, the local songs became really catchy, which were generated by the activists along with the tribal people working in so the very famous singers in the movement, Keval Singh Vasave, Bhadraben Gamit, they're all from Adivasi communities, right? And their songs became so popular. There was no performance by 2 people and the rest had to follow, where the tunes and the language were such that everybody could sing together. The music and the tune are like how the local music is played, the big large drums, so the beats of the lines and how would be in tune with the music which is locally popular and played. So those were very popular, and those are the ones which are not documented, you see. Bhadraben Gamit, Adivasi activist, she was in the movement. She, in fact, was working full time, and everybody in the Narmada Valley called her as the Lata Mangeshkar of Narmada Bachao Andolan. Some of her songs were adapted from some of the Gujarati films which were very popular, and she changed them.
or from the folk music, Garba is very popular, so she adopted that. Or in some of the prayers sung as song to Devi, so she changed them and they became hugely popular because they were easy, the tunes were catchy, they related to the local sentiment. There's one like Chapti Bhari Chokha ne Ghino Che Divado, નારિયેળની જોડ લઈને રે ચલો ચલો નવાગામ જઈએ રે. Means earlier it was chalo chalo Pavagadh jaiye, which is a temple town to worship. She changed it to Navagam jaiye re, where the dam is being built. And in Ferkua, when we were marching, to chalo chalo Navagam jaiye re. So it really created, even in the Maharashtra and Madhya Pradesh people of the area, this was easy to catch, easy to sing. Then there's one song, હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી, which is, oh Krishna, you don't know, I've written so many letters. She changed it to, oh હું કાગળિયા લખી લખી થાકી ચીમન તારા મનમાં. Chiman Patel was a chief minister and people loved it, that we've been tired of writing letters to you and there's no response. So catchy. And there were local Adivasi senior members also singing, and theirs were more about the Narmada River, in reverence, their local, because they lived on the banks of the Narmada. Similarly, to encourage people to really join the movement, the songs in Nimadi in Madhya Pradesh were, because there we have a little bit of patriarchal feudal, so getting women mobilized, so there were simple songs like बांध का सवाल भैया, बांध का सवाल है, बहनों का भी सवाल भैया, बच्चों का भी सवाल है, तेरा भी सवाल भैया, मेरा भी सवाल है. So easy tunes, but really helping people understand that this is an issue which touches upon everybody, bachcha ka bhi, and those are very popular. And therefore songs were a very integral part of the Narmada Bachao Andolan, I mean, of course, there were speeches, but speeches are then, few, whereas songs, everybody could sing and everybody could express their agony or protest against the dam. The participation is on a mass scale. And for me, the songs of Gujarat are particularly dear because it was amazing to see so much poetry generated in a state where the dam was like symbol of development, where we now, the whole country wants to the Gujarat model, but it was questioned there so much from the early days. So those are very important, I think. I mean, mobilization was a huge thing, but when you're walking towards Gujarat border, so that fervor that hum bandh pe pahunchenge, you have this 10,000 policemen armed deployed on the Gujarat Madhya Pradesh border to stop you from entering. So this song, ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીવડો છે દીવડો નારિયેળની જોડ લઈને રે ચલો ચલો નવાગામ જઈએ. So determination, no, we will reach. So these songs would help that no matter, even if we have just a little bit of rice with us and just a little bit of this with us, we have this determination to reach Navagam. Navagam is now Sardar Sarovar, that time Navagam then. And then challenging the government that we have written to you so many, and in form of songs, so many letters and you don't reply. So many different purposes. It's not just for mobilization. Magi bhiki chane imarat sapna na bhangane chod. Magi bhiki ne, which means that you are begging for this project to international financial institutions and erecting it. It's not as if we have those resources to erect such a big, huge project. And the role of, that we are going to the World Bank with a katora that give us money to build this. Sometimes when there are police in front, then, songs which are about the armed forces and the people would be generated spontaneously because the situation is very different, right? Or if the forest department is coming to cut the wood before submergence, then it's a very new situation. Then a song regarding that could be generated, right? Also reminding people in the Adivasi area, it was very important, that you remind people and people remember that their previous generation also had fought to get that
whole empowerment, and songs as remembering the history of the senior generation, which had fought also, the British or the local chieftains or the money lenders. So, and therefore we also are the, next generation have the responsibility to fight. So remembering history, many different purposes all these songs have. Challenging the government, understanding where the benefits are going, challenging the role of the World Bank, so many things. The whole idea of decimating the local culture is very much there with the dance. So their language is under threat. Their, people are dispersed. In fact, I'm very afraid that the Pavari, Bhilali, Nimadi as spoken will no longer be there. In these people will not remember the next generation because they're taught in a different language. They're now their community is completely marginalized. They were already in minority and they have been scattered in very dominant areas of culture. It is very much under threat. In fact, we don't have a record of all these songs and compiled properly. So that's very urgently required to be done. सो एक्चुअली मैंने यहाँ सोचा कि आप लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन और संघर्ष जो नर्मदा घाटी में बड़े बांधों के खिलाफ चला है, ना केवल सरदार सरोवर पर अन्य बांधों पर भी, उसके बारे में आपको जानकारी होगी ही, इसलिए मैंने डायरेक्टली संघर्ष और गानों पे आ गई। और गानों ने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रोल अदा किया है नर्मदा आंदोलन में। और नर्मदा आंदोलन के बारे में अगर जानना चाहें तो आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल, जहां संभावना में मैं अभी भी देख सकती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कभी आपको टाइम मिला आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में किताबें हैं, वेबसाइट्स है, मौखिक इतिहास भी आप सुन सकते हैं। तो ये रही बात नर्मदा बचाओ आंदोलन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ साथ मध्य प्रदेश में आदिवासी एरिया में उसके पहले भी जो 80 के दशक में एक बहुत जबरदस्त आदिवासी इलाके में, अलीराजपुर झाबुआ जिले के इलाके में एक संघर्ष चला जो आज भी जारी है। बहुत सारे मुद्दे ले रहे हैं। खेडूत मजदूर चेतना संगठन उसका नाम है। और उस समय बहुत सारी अलग अलग समस्या उस पूरे इलाके में थी, आज भी है। बहुत सारा एकदम इंटीरियर एरिया है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं पहुंचा है, पर 80 के दशक में तो बहुत बुरी स्थिति थी। और वहाँ लोगों के अधिकार, जंगल पे आदिवासी लोगों के अधिकार, नेचुरल रिसोर्सेज पे, पानी पे वगैरह वगैरह हो, उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई। आखिरी में लोगों को हक मिले भी, फॉरेस्ट राइट्स मिले भी। आज हम जो फॉरेस्ट एक्ट देख रहे हैं जिसमें लोगों का अधिकार रिकॉग्नाइज किया गया है, वो ऐसे ही संघर्षों की देन है। ना सिर्फ केएमसीएस पर पूरे देश में संघर्ष चले। खेडूत मजदूर चेतना संघर्ष जो केएमसीएस के नाम से जाना जाता है, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, क्योंकि बहुत सारे गांव उस संगठन के भी सरदार सरोवर बड़े बांध की डूब में जा रहे हैं। तो उनके जो सीनियर एक्टिविस्ट रहे हैं अमित भटनागर, उनका लंबा इंटरव्यू में से मैं एक छोटा जो गाने पे वो बोल रहे हैं वो इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट इन बिल्डिंग अप अ संगठन बहुत प्रोमिनेंटली उसका एक दृश्य दिखता है व्हेनेवर वन लुक्स थिंग्स ऑफ केएमसीएस। तो नारे, गाने, संगीत, नाच गान, ये सब का एक संगठन बिल्डिंग में तुम्हारा क्या कहना है कि हाउ वाज, व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेड, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? इस संगीत का क्या था कि एक तो रुचि थी हम सबको ही, मुझे भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था। और दूसरा ये था कि आदिवासियों के बीच में उनके लिए नाचना गाना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। मतलब मैं तो पहले शास्त्रीय संगीत सीखता था, तो मेरा ये हुआ कि मेरा 8-10 साल वायलिन को मैंने हाथ नहीं लगाया।
बहुत मेरा रिएक्शन हो गया शास्त्रीय संगीत का, कि ये जो है ना ये फालतू है साला, कि कोई गा रहा है और अपन बैठे हुए बोर हो सुनते रहो, मतलब जब आप इन्वॉल्व ही नहीं हो। जबकि यहाँ का पूरा मामला ऐसा है कि हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व है गाने में ना, उसमें ऐसा है ही नहीं कि आप अच्छा गाते हो बुरा गाते हो, सब गा रहे हो उसमें, आप गा रहे हो। और नाचना भी ऐसा है कि वो ढोल जब बजता है तो आप खड़े ही नहीं रह सकते, मतलब आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लग जाता है, इस टाइप का ढोल है वो। तो इनके लिए तो ये मुझे लगा कि ये तो बहुत ही नेचुरल चीज है, मतलब ऐसे ही चलते चलते गाना फूट जाना मुंह से ना, ऐसे होता है। और गाने भी इन लोगों के 2-2 लाइन के गाने थे और वो पूरे इम्प्रोवाइज्ड होते हैं। तो ये चीज बहुत ही मजेदार है इस आदिवासी गाने का ना, कि आप चलते चलते कहीं भी गाना बना दोगे किसी के भी बारे में। सबसे पहले गाना एक वो नाकेदारों का चल रहा था, तो नाकेदार ठेकेदार उनका एक गायना होता है, जो मतलब एक्चुअली वो स्पिरिचुअल सॉन्ग है, जो पूरा 3-4 दिन वो देवी देवताओं का कहानी पूरा धरती का ये वो चलता है। तो उसकी ट्यून में हमने ये बना दिया था, मतलब सॉन्ग स्टोरी। तो फिर पूरा स्टोरी थी कि नाकेदार गांव में आया, फिर वो कैसे बिहेव करता है, फिर हमने क्या किया, संगठन हो गए इकट्ठा हो गए, और फिर हमने फाइनली उसको कैसे भगा दिया। तो एक बहुत ही पॉपुलर गाना हो गया था, मतलब लोगों को जैसे गायने में बाहर चढ़ जाता है, इस गाते गाते बाहर चढ़ जाता था। तो वो गांव गांव में वो गाने हो गए थे। और मीटिंग में हम तो गाते ही थे शुरू में, और मीटिंग खत्म होने के बाद रात को 2-2 बजे तक 12-12 बजे तक गाने ही गाते रहते थे, और लोग भी गाते थे, उनको बहुत मजा आता था। तो वो गाने बच्चे बच्चे सीख गए थे, और नारे भी बच्चे बच्चे सीख गए थे। तो इनफैक्ट एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट किया था ये, कि हमें गांव में जो है ना बच्चे बहुत बेइज्जत करते हैं। हम मतलब लिटरली ऐसे होता था कि इस घर में आ गया नाकेदार ना, वो बच्चे कहीं खड़े होके आवे 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 नाकादार ठेकेदार गाने लगते थे, है ना, कुकड़ी पानिया मांगे नाकादार ठेकेदार करके। और वो ढोर चराते, जानवर चराते हैं, तो जंगलों में रहते थे, तो देख लेंगे कहीं भी कोई आ रहा है नाकेदार, वो चिल्लाने लगते थे वहां से। तो वो बहुत ही स्ट्रांग था, तो मजा आता था, तो गाते थे बहुत सारा। तो बहुत सारे गाने, मतलब कोई भी गाने को फिर हम भी तोड़ मड़ोड़ भी देते थे उसको। तो जैसे रैली में जा रहे हैं, जैसे वो गाना है ना कि अमरी लड़ाई चालू छे, तो अब वो कोई ऐसा बैठ के नहीं बना, आप रैली में जा रहे हो, तो जा रहे हो, दिख रही है रैली पूरी और इतना जोश में है, बन गया हो अमरी लड़ाई चालू छे। तो फर्स्ट लाइन है उसकी कि अलीराजपुर ने गोली मां अमरी लड़ाई चालू छे, फिर आप जोड़ते रहो, फिर वो मतलब हर आदमी उसमें हर लाइन नई बन जाती थी। तो ऐसे बनते जाते थे, फिर उसमें जुड़ते रहता था। कोई भी देख रहा है तो ये बंगला वाला देख ही रहा, अमरी लड़ाई चालू छे, अमरे साथे जुड़ाई जा, अमरी लड़ाई चालू छे करके वो चलता रहता था। तो ऐसे बहुत सारे बने, और उससे ताकत बहुत मिलती थी लोगों को, और बात बहुत अच्छी समझ आती थी। मतलब जितना भी आप भाषण लगाओगे ना, उससे अच्छा वो एक गाने में या नाटक में बात, मतलब कम्युनिकेशन का तो बहुत सुंदर मीडियम है। तो वो मतलब एसेंस लोगों को उसी से समझ आ जाता था। तो ये एक हर समय, मतलब जैसे मैं बताया कि बातें लोगों को समझाना, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि केवल इतनी की नाकेदार आएगा तो ये करना है, कि वन नीति या वैश्वीकरण कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर वो तो गीत एक माध्यम है जिससे लोगों को समझ आ जाता है। तो उसका स्ट्रेंथ है गीत का, कि एक बात लोगों के मुंह में आ जाती है उससे। तुम याद करके बताओगे कि कैसे कैसे बनते गए, क्योंकि बहुत पॉपुलर गाने रहे हैं। फिर उसी की तर्ज पे बांधे बांधे बना दिया था। जब बाद में बांध का बना था तो उसी की तर्ज पे बांधे बांधे बना दिया था, और उसमें भी पूरी कहानी बांध की चलती थी कि इससे क्या नुकसान है, फायदा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। वो डैम के संबंध का गाना बता देता हूँ, कि जैसे वो मुझे याद है कि ये लड़ाई नहीं वेला अवीरे छोरा, तो वो हम धड़गांव में कोई मीटिंग थी, तो यहाँ से हमारे तरफ से भी कुछ लोगों को जाना था, तो मैं उनके साथ गया था, सभी वहाँ के महाराष्ट्र के भी लोग थे। तो वो गाना रास्ते में ही बना था, वहाँ धड़गांव जाते जाते ही बना था। तो फिर और मुझे याद है फिर वहां पर वो बन गया। और ये जो था ना, ये क्या बोला मैंने, कौन सा, लड़ाई नहीं वेला आवी रे छोरा, कोसली जुआर पाकती होती, कोसली वारू मकई, वो है ना, फिर खेती बाड़ी डूबी जैसे, खाने न वेला करे, वो ऐसे करके उसमें 3-4 था कि खाने का, जंगल जानवर का, और इस तरह का क्या प्रॉब्लम होगा। तो वो बन गया था गाना। और फिर वहां धड़गांव में किसी स्कूल या किसी एक ऐसे बिल्डिंग में सब इकट्ठे हुए थे, और वहां बहुत जोश में वो गाना गाया था सबने, बहुत जोश में, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब बस जाके चार्ज कर देना है ना ये गाना गाते हुए। वो भी बहुत पॉपुलर गाना हुआ।
नर्मदा आंदोलन में भी, दूसरे जगहों में भी वो काफी ज़्यादा चला। फिर ये बांधे 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 तो था एक, मतलब उसमें जरूरी नहीं है वो नाकेदार और इसके थे, क्योंकि वो एक जनरल गाने भी थे। तो गरीब गेहूं पकाड़े, गरीब खाए राबड़ी, गरीब कपास पकाड़े, लेकिन गरीब अनपुरिया उगाड़ला, वो नंगा घूम रहा है, इस तरह का भी था। तो फिर एक पॉइंट पे हमने तो मतलब यही कार्यक्रम करा था, है ना। वो हंसते भी थे लोग कि ये जो है ढोलकी लेके ही मैं तो गांव में शाम को जाता था, और वो जवान जो लड़के लड़की थे ना पूरे, उनका एक नया ही जनरेशन हमारे देखते देखते खड़ा हो गया था वहां पर। तो फिर वो बस वो गाने का प्रोग्राम है करके, जैसे ये भजन मंडलियां होती थी वहां पर ना, कबीर पंथी और इन लोगों की, तो वो रात को पूरा रात भजन चलता था, चाय पीते रहते थे और वो अर्थ समझाते रहते थे। तो वो हमारे दिमाग में था कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है और अपन भी इस सिस्टम में चले जाओ, वो लगता। तो वो हम उस समय वो भी करते थे, एक साल पूरा मेरे को याद है ऐसे ही मैं धंधे में था कि बस कहीं चले गए, फिर पहले से खबर होती थी तो पूरे 8-10 गांव के लड़के लड़की लोग आ जाते थे और पूरा रात 3-4 बजे तक गाना गाते थे, फिर एक के बाद एक, मतलब वो कुछ क्रम से, और फिर उसके बीच में कुछ उसके बारे में लोग समझाते थे कि ये गाने में क्या बताया, देखो अपनी हालत ऐसी है वैसी है, ये सब बताया। तो वो चलता था। तो और फिर वो जवानियों का जवानिया पार्टी एक बना दिया था, तो वो रात को उनकी, मतलब पूनम की रात को मीटिंग होती थी महीने में, और वो ढोल लेके ही आते थे। तो पूरा रात वो कल्चरल मीटिंग होती थी एक तरह से, कि पूरा नाचते थे, और हर 1 घंटे के बाद फिर एक मीटिंग होती थी, कोई एक इशू तय कर लेते थे, जैसे शराब का हो गया तो शराब के ऊपर ही गाने गाएंगे, शराब का नाटक करेंगे और नाचते रहेंगे रात भर। घाट सब अपना अपना अनाज लाते थे, कुछ वो घाट बोलते थे जो, उसको रांध के खाते थे, सवेरे उठ के सब घर चले जाते थे। तो वो कल्चरल तो बहुत स्ट्रांग था वहाँ पर। हर साल फिर एक जंगल मेला हम करते थे, जिसमें पूरे संगठन के लोग इकट्ठे होते थे, तो उसमें खेल कूद होता था, नाटक होता था और गाने गाए जाते थे माइक पे, कुछ वही कुछ इशू को लेके बातचीत होती थी। तो कल्चरल काफी सारा होता था। फिर नाटक को यूज करते थे काफी, जैसे जब भी कोई मीटिंग्स के लिए जाना है तो वो पूरा एक रोल प्ले। तो आप समझ सकते हैं कि संगठनों में, आंदोलनों में गाने और कल्चरल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, और हम जैसे एक्टिविस्ट का रोल ये है कि हमारा जो वहाँ की ट्रेडिशनल भाषा है, मुद्दे हैं, वहाँ के लोग के गाने हैं, उसको भी बहुत जरूरी है बाहर फूटे। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ थिरकते ही रहते हैं लोग। इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, म्यूजिक, कल्चरल ट्रेडिशन। तो लोकल गाने में संघर्षों का पूरे गाने जुड़ जाना, वो बहुत महत्व का है, क्योंकि वो फिर लोग सब गा सकते हैं, सब एसोसिएट भी कर सकते हैं, भाषा भी समझ में आ सकती है। क्योंकि आज जंगल का मुद्दा है, गांव में तो सारे मुद्दे रहते हैं, अल्कोहलिज्म, पेट्रियार्की, फ्यूडल, ये वो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गाना बना दिया और वो पूरे 15 साल चलता रहा, क्योंकि जो डिमांड होती है उस समय के संघर्ष की, वो भी अलग अलग होती है। और लोग के पास म्यूजिक बहुत बड़ी ताकत है ही, और यूथ बहुत, आदिवासी एरिया में नाचना गाना इज अ वेरी 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो उसमें कैसे हम घुल मिल के संघर्ष के गाने उभरे मिल के, वो बहुत ध्यान रखना मेरे हिसाब से जरूरी है। और मेरे जैसे एक्टिविस्ट जो बिल्कुल ही म्यूजिक में जीरो है, बहुत कुछ मैंने लोकल लेवल पे सीखा कि कितने सुंदर गाने उभरते हैं आंदोलनों में, बहुत फर्वर के साथ, अलग अलग भाषाओं में, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, गुजराती, पावरी, भिलाली, निमाड़ी। एक ही आंदोलन में, नर्मदा बचाओ आंदोलन में 7 अलग अलग भाषाओं में गाने उभरे, लोकल भाषाओं में, प्रोटेस्टिंग दिस डैम। सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट टेक अवे। और मैं अब जैसे एक लास्ट क्लिप बिफोर वी गो इनटू क्वेश्चन आंसर्स शेयर करना चाहूंगी, जो आप शायद सभी जानते होंगे। राहुल राम, इंडियन ओशन को तो जानते ही होंगे। उनका म्यूजिक में प्रोटेस्ट सॉन्ग्स उन्होंने काफी अडेप्ट किए हैं। नर्मदा आंदोलन से भी एक माँ रेवा थारो पानी निर्मल बहुत पॉपुलर हो गया है। वो आज समय नहीं है पर जरूर सुनिएगा। वो नर्मदा घाटी में निमाड़ के क्षेत्र में लोग बहुत एक नर्मदा की स्तुति में गाते थे, वो उन्होंने अडॉप्ट किया। यहाँ एक उनका छोटा सा 5 मिनट का क्लिप में उनके विचार, आप शायद सहमत हो ना हो वो अलग बात है, पर जरूरी है कि हम ये सब के जिन्होंने बहुत सालों तक आंदोलनों में या म्यूजिक क्षेत्र में या प्रोटेस्ट म्यूजिक पे विचार किए हैं,
उनके हम विचार सुने और समझे। सो मैं राहुल राम का भी एक छोटा क्लिप जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो शेयर करना चाहूंगी। ये भी शायद अंग्रेजी में है पर आई एम श्योर समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर में हम उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू। British in the 1857 war. So Chitu was a real hero of that time. So he made it into a song कि चीतू तारो बंगलो सिरकार हाप के ले दोली एकाई भाली रही, कि चीतू तेरे बंगले को सिरकार ने छीन के ले लिया है, खड़े खड़े क्या देख रहा है. So he goes from Chitu to Motia Bhil to Bamnia Naik. All he goes through this, and his last lines are भीलू तारो आबरू सिरकार हाथ के ले दुली एक भाली, कि भील तेरे आबरू को सिरकार ने छीन लिया. हाँ, खड़े खड़े क्या देख रहा है. So these are political songs, these are not environmental songs, you know, and it says so much because it's another song we sing, Indian Ocean, again written by Shankar Bhai, is Nakedar Aave Kukudi Mange Re. The police comes and asks for kukudi, that is a chicken, as a bribe. Rinzar Aave, Rinzar is forest ranger. Rinzar Aave poiha mange re, paisa mangta hai, bribe. Okay, so ही भी जूनी आपतारा कि पहले की तरह अब हम नहीं देंगे. वागने वासड़ा अबू आदिवासी रा, कि हम आदिवासी लोग शेर के बछड़े हैं. So interesting that in just 4 lines you convey corruption, you convey the states taking bribes from you, you convey that I used to give these bribes earlier but now I won't give it. So it's a song about corruption, about Adivasi self-identity and pride. So difficult for a shahri or a town person to put this complex thoughts into one simple 4-liner. Interesting, na? That I've always found that when poets in villages write stuff, they write it more simply, but the thoughts are complex. Whereas when town people start making environmental music, you know, they have to dot the I's and cross the T's. Because we are singing our music to people who don't understand the context. Whereas when Shankar is making a song for the people in his village, they understand the context. The minute you say Nakedar Aave Kukudi Mange, you are like, yeah, of course, Nakedar Aave Kukudi Mange. You know? So, complex ideas put into simple language and with an interesting tune. These 3 are important for a good song, to be political or to be environmental. Like I remember once listening to a lady called Holly Near, who is a political singer, and she said there is nothing more boring than a boring political song. So it has to be musically interesting as well. Just the lyrics are not enough for the musician. And that is true for almost everything. All kind of, you know, if you're singing about any issue, like I will Medha Patkar will kill me for this, but her favorite song was one of the most boring Medha, make songs. sure you tune into this, okay, Medha, please. Huh? Yeah. Medha's favorite song during those Narmada days was इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, and sung at this speed. शाम से भी न हो रात हो. I'm sure she's going to kill you for this. She would sing with a lot of soul and feeling and meaning for her, because the lyrics were saying exactly why इसलिए राह संघर्ष की हम चुने. And there is one very badmash activist at that time who still actually does very interesting work on water, Shripad Dharmadhikar. Shripad. So Shripad one day told me, listen, I have found that these lyrics fit exactly into a Hindi film song. And he sang it to me. So it is इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी
आंसुओं में नहाई न हो, शाम से मी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर दबदबा ही ना हो. Much more interesting. You know, And people will frankly. listen to it. No, I mean, you will I hear think it in so. other So, other places I'll also. tell you the funny part is that when I got out of jail in this Narmada thing in '93, there was a big 2 मिनट और बजा सकते हैं, ये जेल वाली कहानी भी बहुत अच्छी है, 2 meeting मिनट in और. the Tehsil headquarters, and I had just gotten out of jail, and Meda said, Rahul, jao, or isliye raha sang, isliye gao. And I went to the mic to sing Isliye, and the only tune that was coming in my head was the Hindi film. Did you sing that? No, Your father was a botany professor. Mother was a communist Yes, supporter. okay, so And yeah, my because mother was so let me tell you that I enjoyed Meda singing also. So I'm just sharing this. हाँ, so please to be clear, but ये अलग अलग व्यूज हैं. हमने समझना चाहिए कि बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक का जगह रहती है आंदोलनों में. हर स्थान में एक अलग फर्वर का, कभी दुख का भी जगह रहती है. जब फायरिंग होता है, कोई सब मार्टियर्स हो जाते हैं, तब दुख के भी गाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं. तो पर वो लोकल स्थान, लोकल लैंग्वेज का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. सो म्यूजिक एंड सॉन्ग्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एनी मूवमेंट. बहुत महत्व का सवाल है. एक्चुअली गाने गिव एंड टेक भी बहुत होता है. मतलब नर्मदा आंदोलन में पूरे दुनिया से लोग आते थे, तो वी हैड सॉन्ग्स जो दुनिया भर के लोग गाते थे, जो गांधीयन थॉट के, मार्क्सिस्ट थॉट के गाने भी, विमेन्स मूवमेंट के गाने भी, महिलाएं जो महिला आंदोलन से जुड़ी हुई वो भी गीत गाती थी. तो बाहर से भी बहुत सारे गाने घाटी में आए, और जब वो गाने वाले आते थे तो लोकल गाने सीख के बाहर जाते थे, तो एक एसिमिलेशन था. तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के गाने. बाहर कार्यक्रम होते थे तो हम ध्यान रखते थे कि लोकल 2-3 गाने भी गाएं, और दूसरे भी रिलेटेड, जो सेंटिमेंट रिलेटेड नर्मदा आंदोलन की हो और कोई भाषा समझ में आए, वो गाना बना हुआ भी गाएं. तो पीपल एंजॉयड वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. और समझा देना कि ये है, एंड उसका म्यूजिक डाइवर्सिटी इन सॉन्ग्स इवन आउटसाइड दी वैली पीपल एंजॉय, है ना. पुलिस लोग जो देश भर से एनरोलमेंट होती है, तो भिलाली में भी समझ जाते थे पुलिस, क्योंकि इतनी, और द फर्वर, एंड दे एंजॉयड लिसनिंग टू and understood what people are trying to convey about the forest department, about the police. बीच बीच में कुछ और भाषा में भी गाने, क्योंकि सारे आंदोलन के प्रोग्राम में बाहर से भी लोग जुड़ते थे, तो उनके भी गाने 2-3 फिर पेश कर देते थे. So it was not as if there was only limited languages में गाने. It was really widespread. Influences of non-violence came in, influences of protest, vibrant protest came in. Gandhian songs, as I said, बहुत प्रकार का मिश्रण होता है. वो एक ही प्रकार के गाने रहेंगे तो वैसे भी काफी वो हो जाता है, क्या, I mean, monotony. So there were different kinds of songs being sung, अलग अलग वाजिंत्र, म्यूजिक अलग अलग, अलग अलग लोक गाना, अलग अलग भाषाओं में गाना. It only enriches. एंड एक्चुअली एनबीए में मैंने ऐसे भी देखा है कि वहाँ पे मलयालम गान, मतलब लोग भी केरला से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं इन सॉलिडारिटी, तब ये गानों का ही मतलब एक्सचेंज भी होता है. ये भी मलयालम सीखते हैं, वो भी वो गाना सीखते हैं. तो इट्स नॉट आइसोलेटेड शायद इन दैट सेंस, नो. इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे स्लोगन, क्योंकि केरला और साउथ इंडिया से लोग आते थे, तो लोग को अच्छा लगता था कि ये स्लोगन ये है,
तो लोग बोलते थे वो अलग भाषा में नारा, यू नो, एंड बॉम्बे में जाए तो वो टाइप का नारा, बट लोकल भी बोलना, साथ में वो भी बोलना. यू आर राइट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दैट अस्वस्ति, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट रिमाइंडिंग. सो ये मानना कि हम लिख के जाके परफॉर्म करेंगे, ये करना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर वो ही एक तरीका है ऐसा नहीं है. इट विल हैव टू बी टू वे प्रोसेस. हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ही सब है और हम जाके बना के गाने सिखाएं, नहीं. इट विल हैव टू बी अ टू वे प्रोसेस, यू नो. इट विल हैव टू बी, वील हैव टू लर्न देयर म्यूजिक, देयर सॉन्ग, हाउ, एंड वो भी बहुत सुंदर बनाते हैं जहां भी हम काम करने जाएं, जिस क्षेत्र में हम जुड़े हों. तो local music and sentiment language also has, they are very rich in music. तो वो कैसे हम सीखें वो भी जरूरी है. It has to be two way process. एक तो ये सारे जो हम हमारे जमाने के एक्टिविस्ट, अब आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट, यू नो, सीनियर. तो हम लोग बहुत क्षेत्र में ही रहते थे. तो वहाँ जो जैसे आदिवासी एरिया में पूनम को मैरिज के ओकेजन में गाना बजाना यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब वो होता ही था. तो उसमें फिर एक आध बार कोई एक और गाना गा लेना सबके साथ मिलके, क्योंकि ग्रुप ने बनाया ही है, तो धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट आता है. तो फिर स्पेशल एक दिन उसी के लिए भी रख सकते हैं. धीरे धीरे, वो आप एकदम एक दिन रखेंगे चलो हम ये मुद्दों पे ही गाना गाएंगे, ऐसा नहीं. यू विल हैव टू, यू नो, पूनम की रात जो उनका सालों से, सदियों से चलता आ रहा है ट्रेडिशन, जिसमें म्यूजिक, गाना, नाचना, थिरकना, होली के त्योहारों में बहुत नाच गान, दिवाली में, इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ. हमारे कोई भी गांव में आप जाएंगे, म्यूजिक का एक स्थान रहता ही है. उसमें कैसे कैसे धीरे धीरे ये सारे मुद्दों का भी जुड़ाव हो सकता है, वो आपने वहाँ के जो गाना में अधिक रुचि रखते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ धीरे धीरे चालू करना चाहिए. वो एकदम नहीं होगा, आपको वहाँ घुल मिल भी जाना पड़ेगा, कुछ समय आपको वो देना पड़ेगा. यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. वो एकदम नहीं होता. आज हमने तय किया ये करेंगे, पीपल वोंट बी इंटरेस्टेड. वो धीरे धीरे प्रक्रिया है. जैसे हमने हमारा नर्मदा आंदोलन में एक यूथ ग्रुप था, कल्चरली बहुत एक्टिव था. तो उनको हमने पूछा कि आप ये ऑलरेडी गांव गांव जाके आप नाच, कठपुतली खेल करते हो, तो उसमें एक आध जोड़ सकते हैं क्या डैम का एक 10 मिनट का क्लिप. तो दे वे ईगर. तो पूरा उनका जो कठपुतली खेल का वैसे भी जो करते थे उसमें 10 मिनट का जोड़ दिया. तो इट बिकेम सो पॉपुलर. इनफैक्ट फिर जो डूब के गांव है, वो ये लोकल यूथ जो कठपुतली खेल करते थे उनको बुलाते थे कि तुम डैम के ऊपर का ही खेल करो. तो फिर धीरे धीरे वो 1 घंटे का हो गया. यू नो, कैसे डैम तय कौन करता है, कौन फंड करता है, पूरी वही भाषा. कठपुतलियां फिर उन्होंने वर्ल्ड बैंक के अधिकारी की, गोरे आदमी की बना दी. फिर दे रियली डिड इट देमसेल्व्स. फिर पॉलिटिशियन वो खादी कुर्ता, लंबा टोपी करके कैसे आता है, फिर फॉरेस्टर अलग तरीका वो करके उन्होंने फिर डैम का एक पूरा बना दिया कि कैसे नदी. तो वो इतना पॉपुलर हो गया वो कठपुतली खेल. तो ये पूरी क्षेत्रीय ही मंडली थी. हर गांव, जो 245 गांव थे डूब के गांव के, तो वहां से उनको बुकिंग हो जाता था कि आज वहां जाके खेल करना है, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था. फिर वो जो करते थे पहले कठपुतली खेल, वो बाजू में रह गया. डैम के मुद्दे पे ही लोग बुलाने लगे. तो इट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू डू दैट. मुझे लगता है कि यू नो, लोग का जीवन संघर्ष रहा है. फॉर अस इट मे बी, यू नो, टायरिंग, बट पीपल हैव बीन फाइटिंग इन देयर डेली लाइव्स. विमेन हैव बीन फाइटिंग. सो और उसको सप्रेशन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सिर्फ प्रोटेस्ट ताकत से हम कर पा रहे हैं. वो एक पावरफुल वॉइस, आवाज फूट रही है, हम बोल सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, यू नो, कि हम किसी को भी सवाल कर सकते हैं. बिकॉज अर्लियर ये सारे एरिया में ऐसा भी होता था कि पुलिस आई, किसी को भी पिकअप कर गई. देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ द गवर्नमेंट.
उसमें से निकल के एक ताकत के गाने, एक खुशी के साथ, एक कलेक्टिवनेस कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, मैं और तुम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव लड़ रहा है। तो कलेक्टिव सॉन्ग्स जो थे, ताकत के सॉन्ग्स थे, सवाल खड़े करने के सॉन्ग थे, वो बहुत रिस्पॉन्स एंड जॉय आल्सो, यू नो, आई मीन नॉट ओवरबर्डन्ड विद दी, पर वो कलेक्टिवनेस में एक स्ट्रेंथ है, वो एग्जिबिट करना। हमारे पास भी सवाल है, वो सारे बहुत पॉपुलर हो गए, और ह्यूमर के भी, ह्यूमर।